أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونبينا وشفينا ومولانا جد القلوبنا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النور وسفينة النجاة. صلوات. مومنین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورا ایریا بلاک ہے. دوسرے مذہب کے جو ان کے مذہب میں تبرکات ہیں وہ راستے میں آ رہے ہیں. اس کی وجہ بہت ہے اور آنے جانے میں بہت پرابلم ہے، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا آنے میں. خیر، دو تین باتیں آپ کے سامنے بہت جلدی پھر ربط مسائل. عزیزو، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ نے حسین عطا کیا. آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ آپ کو حسین ملے. جب نماز پڑھا کریں تو الگ سے شکریہ ادا کریں پروردگار کا کہ پروردگار نے آپ کو حسین کا عزادار بنایا. ورنہ میں دنیا میں اور بھی لوگ تھے. آپ دیکھیں کیسے لوگ کس طرح سے حالات ہیں کہ جو دوسرے خداؤں کو مان رہے ہیں ان کے حالات کس طرح سے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور انہیں دیکھیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ حسین نے ہمیں اپنا بنا کر کے ہمیں کیا عزت دی. آپ سے حسین کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اس لیے چھینی وہ شے جاتی ہے جو جسم کے اوپر ہو. حسین آپ کے دل میں ہے، حسین آپ کی روح میں ہے. اب آپ کو اپنی روح کو ایسی بنانی ہے کہ حسین کو بھی ناز ہو آپ پہ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ اس کو دیکھ کے منہ پھیر کے چلے جائیں. نہیں، اچھی بات نہیں. اپنے بڑوں کا احترام کیجئے، اپنے چھوٹوں کا احترام کیجئے. اس لیے کہ اگر چھوٹا آپ کو سلام نہیں کر رہا، آپ اسے 2 مرتبہ سلام کر دیں. یہ نہیں سوچیں کہ چھوٹا بدتمیز ہو گیا سلام نہیں، آپ اسے 2 مرتبہ سلام کریں سامنے سے. یہ بچے مجھے ایسے نہیں سلام کرتے. میں جب آتا تھا تو وہاں سے یہ شروع کرتا تھا سلام، ان بچوں کو سلام سامنے سے کرتا تھا. آج یہ بچے مجھے سلام کرتے ہیں. تو گیو اینڈ ٹیک ہر جگہ ہے. تو بچوں کو سلام کیجئے، 2 بار آپ سلام کیجئے، تیسری بار میں یہ آپ کو سلام کریں گے. بڑوں کی عزت کیجئے، جہاں تک ہو سکے بڑوں کی عزت کیجئے. کوئی بھی ہو اس کو سلام کیجئے. دیکھیں عزادار جو اس کی اہمیت کو سمجھے. شروع سے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، عزادار کی اہمیت کو سمجھے. جس طرح آپ کی اہمیت ہے اس طرح دوسرے عزادار کی بھی اہمیت ہے. اس کو سمجھیے. ایسے نہیں ہوا میں مت عزادار کو لے لیجئے اور عزادار کے لیے فوراً خدا مت بن جایا کیجئے. اس سے کہ بہت سے ملاؤن ایسے گھوم رہے ہیں، بہت سے بے غیرت ایسے گھوم رہے ہیں جو عزاداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، تبرکات عزا کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے گھر میں پرورش دی ماں نے ویسا کام کرتے ہیں وہ. اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. ماں نے پرورش جیسے دی وہ ویسا کام کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو عزاداری کی عزاخانوں کی تبرکات عزا کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اس کی عزت کرنی ہے تو کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. اسلام میں جبر نہیں ہے، لیکن عزاداری آپ کو کرنی ہے ہر حال میں. اس سے پینڈ نہیں چھڑانا ہے. نہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر کر کے ایک اعلان کیجئے ہم یزیدی بول کے نکل جائیے. لیکن یہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ علی اور حسین کی محبت ایسی ہے کہ جس کو چھپایا جا سکتا. ایک بار ان کی دشمنی کو زمانہ چھپا سکتا ہے. آپ دیکھیں اتنے لوگ دشمن ہیں عزاداری کے، حسین کے اتنے لوگ دشمن ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ منہ پہ بولیں کہ ہم حسین کے دشمن ہیں. وہ جیسے تیسے کر کے نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں.
अली के दुश्मन हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जाहिर करेंगे तो कैसी लानतें पड़ेंगी। लेकिन नाम अली एक ऐसा मौजज़ा है कि ये बता देता है, दुश्मन का चेहरा सामने ला के रख देता है। एक बस में एक मलंग सफर कर रहा था, एक मौलवी साहब सफर कर रहे थे। बस जो थी वो जोर से उछके खाई। मलंग के मुंह से फौरन निकला, या अली मदद। जो मौलवी साहब बैठे थे उसने कहा, इतनी भी तो जोर से नहीं उछली जितनी जोर से तूने कहा या अली मदद। उसने कहा, इतनी जोर से उछली या नहीं उछली, लेकिन जितनी जोर से मैंने कहा उतनी जोर से तेरी नस्ल का पता चल गया। इतनी जोर से तेरी नस्ल का पता चल गया मुझे, इससे फायदा मुझे ये हुआ। तो याद रखें, अली से और हुसैन से मोहब्बत करें, लेकिन इसके साथ साथ हुसैन के साथ साथ, हुसैन को मानने के साथ साथ, अली को मानने के साथ साथ अली की भी माने, हुसैन की भी माने। इसलिए कि सिर्फ हुसैन को मानने से काम नहीं चलने वाला, हुसैन को माने तो हुसैन की भी माने। याद रखें, आप अज़ादार, आपकी बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है, आप इसको नहीं जानते हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने बताऊं। एक बंदा मशी करता हुआ चला, रात आ गई, यहां से मसाइब शुरू करूंगा। रात आ गई, उसने एक अज़ादार का दरवाजा खटखटाया। जिस अज़ादार का ये सामने सामने दो दरवाजे थे, उसने एक दरवाजा खटखटाया, उसने खोला नहीं तो उसने दूसरा दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन जब खुला तो दोनों दरवाजा, गौर से सुने इसको, दोनों दरवाजा साथ में खुला। और जैसे ही खुला, उस बंदे ने दोनों को चेहरा देखा। दोनों ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, भाई मैं हुसैन का ज़ाहिर हूं, मशी कर रहा था, रात हो गई है, थक गया हूं, प्यासा भी हूं, भूखा भी हूं। मैंने सोचा तुम अज़ादार का घर है, तुम लोगों का घर है, तो दरवाजा का, लेकिन मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने देर कर दी खोलने में, तो मैंने इसका दरवाजा खटखटा दिया। तो इसने खोले तो दोनों ने क्या किया, उसका बाजू पकड़ लिया, कहा ये मेरा मेहमान है। उसने कहा नहीं मेरा मेहमान है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। तो जिसका दरवाजा पहले खटखटाया था, उसने देखा कि इसे तकलीफ हो रही है, उसने बाजू छोड़ दिया। और जिसका बाद में खटखटाया तो उसने बाजू पकड़ लिया, कि ये मेरा मेहमान है। तो जिसका दरवाजा पहले खटखटाया था, उसने दूसरे वाले के कान में कुछ कहा। जैसे ही कहा, उसने उसका बाजू छोड़ दिया, कहा ले ये आज तेरा मेहमान है, ले जा। वो उसे अपने घर ले गया। रात को उसको खाना खिलाया, सुलाया, सुबह उठा, नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ ली, नाश्ता कराया, तो उस अज़ादार ने, उस ज़ाहिर ने पूछा उससे कि ये बता, उसने जब मेरा बाजू पकड़ के अपने घर की तरफ खींचा तो तूने ऐसा क्या उसके कान में कहा कि उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और कहा ले जा तेरा मेहमान है? उसने कहा मसला ये है कि ये जो बंदा था सामने वाला, ये मेरे जवान बेटे का कातिल है। मैंने उसके कान में कहा कि एक रात के लिए अगर तू हुसैन का ये मेहमान मुझे दे दे तो मैं मेरे बेटे का कत्ल तुझ पे माफ कर दूंगा। बस उसने इस वजह से ये अज़ादार मुझे, तुझ जैसा अज़ादार मुझे दे दिया। अहमियत देखें, लोगों ने अज़ादारों के लिए अपने बेटे के कातिल को माफ किया है। हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। ऐसे बनना, ऐसा दिल होना चाहिए। हुसैन को मानते हैं तो ऐसा दिल होना चाहिए। हम तो एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते, मुंह मोड़ के निकल जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मुंह टेढ़ा करके चले जाते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। हालात बहुत बुरे हैं, एक हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल एक हो जाएं, भूल जाएं बातों को, हुसैन के खातिर एक हो जाएं। याद रखें, जिसकी फर्श अज़ा पे रोने के लिए आए हैं, वो बीबी बहुत दुखी है। उस बीबी को उम्मत ने चैन नहीं लेने दिया। उस बीबी के बाप को भी जहर दे दिया। बीबी यतीम हो गई, रात भर घर पर रोती रही, दिन भर रोती रही, उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। दरबार गई तो दरबार में 4 घंटे खड़ी रही।
4 घंटे फातिमा खड़े खड़े सलमान से रो के कहती है, चाचा सलमान इससे कहो ये क्या चाहता है, मैं इतनी देर खड़ी होने की आदी नहीं हूँ, मेरा बाप मोहम्मद मुझे इतनी देर खड़ा नहीं रखता था, मैं जैसे ही आती थी मुझे अपनी मस्जिद में मेरा बाबा बिठा देता था, इससे कहो ये क्या चाहता है। इधर जब फैसला होने लगा उस ज़हरा ने हुजूर के हाथ का लिखा हुआ खत पेश किया ना कि ये मेरे बाबा का खत है, मलाउन ने पहले उसके ऊपर थूका, उसको चाक किया, जनाब ज़हरा के चेहरे की तरफ देख के कहता है कि ये खत झूठा है, तू बीबी को जब कहा ना तू भी ऐसी है, जनाब ज़हरा ने अपना सर दीवार पे मारा, मार के कहती है मुझे सब कुछ कहना, झूठी न कहना, मेरा बाप मेरी सदाकत की कसमें खाता था, ज़हरा झूठी नहीं है। उम्मे ऐमन कहती है बस इस लफ्ज ने बीबी को ज़ईफ कर दिया। अब जो दीवार पर सर मार के जमीन पे बैठी है ना हुसैन की माँ, अब जो बैठी है तो अपने हाथों से उठ नहीं पाई, दो बीबियों ने सहारा दिया, बस इस जुमले को सुनकर के ज़हरा ज़ईफ हो गई। हाँ अज़ीज़ों एक रुखसती पढ़ दो बस उसे सुन ले। हाँ ज़हरा चली, दो बीबियों का सहारा लेके फातिमा चली, दरबार से ये कह के लौटी जिस तरह तूने मेरे बाप का खत पढ़ा ना, अल्लाह तुझे भी चाक करके मारे। इधर कह करके बीबी आने लगी, घर पे आई है, दरवाजे पे दाखिल हुई, हसन ने चेहरा देखा, बीबी ने हसन से पर्दा किया। हसन ने कहा माँ अम्मा मेरे नाना की शरीयत में जवान में बड़े बेटे से पर्दा तो नहीं है। रो के कहती हसन जिद ना कर, हाँ जब मैं मर जाऊं मुझे कहना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी। ये कह के घर के अंदर दाखिल हुई, 4 साल की बच्ची आई, आके माँ के कदमों की तरफ देखा, देख के कहती अम्मा अम्मा ये पैरों में वरम कैसा है। अब जो चेहरा देखा ज़ैनब पहचान नहीं पाई, कहती है ज़ईफा कौन है। ज़ैनब को सीने से लगा के कहती है ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। ज़ैनब घबरा के कहती है अम्मा जब दरबार गई थी अम्मा चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, अम्मा चेहरे के निशान नहीं थे, अम्मा अम्मा बात सफेद नहीं थी, अम्मा कमर झुकी नहीं थी। सीने से लगा के माथा चूम के कहती है ना मेरी जान सब बोले तू ना बोल। मैं जिस दरबार गई थी ना उस दरबार में मुसलमान थे, बीबी मेरे सर पे चादर था, लेकिन बीबी तू जिस दरबार जाएगी ना तेरे हाथ पसे पुलिस बंधे होंगे ज़ैनब, कोई तेरे सर पे गर्म पानी फेंकेगा, कोई तेरे सर पे पत्थर मारेगा, ज़ैनब तू पुकारती रहेगी बीबी। हाँ जब दुनिया से रुखसत हो गई ना जनाब ज़हरा तो वसीयत की थी ना इमाम हसन से, हसन मुझे कहना अम्मा मरने के बाद तुझे अपना चेहरा दिखाएगी। हसन आए, आके मैयत के पास खड़े हो गए, खड़े होके कहते अम्मा अम्मा आपने कहा था ना जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कहना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी। अम्मा हसन को चेहरा दिखा, एक हवा चली, ज़हरा के चेहरे से कफन हटा, हसन की चीख निकली। हसन कहते हुसैन मेरी तलवार ला, इन लोगों ने मेरी माँ के चेहरे पे ताज़ियाना मारा था, अच्छा हुसैन मेरी माँ का चेहरा फट गया था, मेरी माँ ने मुझे चेहरा नहीं दिखाया। हुसैन को बुलाया अली ने, हुसैन आजा। हुसैन ने कहा नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा। कहा हुसैन क्यों? कहा बाबा ना मैं ईसा से कम हूँ ना मेरी माँ मरियम से कम है, अम्मा जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। बंदे कफन टूटे, आवाज आई मेरा हुसैन आजा मेरा लाल। हुसैन दौड़ा, अम्मा 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 हुसैन तेरे बगैर नहीं रह पाएगी, अम्मा मुझे भी अपने साथ ले चल अम्मा। अम्मा अब घर में कहाँ ढूंढूंगा अपनी माँ को। इधर मलाइका में कोहराम बरपा हुआ,
आवाज आई, अली जल्दी से हुसैन को हटा ले वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। इधर हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा हुसैन हट जाओ। नहीं अली 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 नहीं हटा पाए। अली आए बेटा हटा, नहीं हुसैन हटे। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है सब हट जाओ, सब हट जाओ, मेरा गरीब है ना, गरीब को गरीब की बहन हटाएगी। आके सीने से लगा के कहती है और मेरा करबला का गरीब, इस गरीब बहन की बात मान ले, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं, मेरे हुसैन अम्मा को रुखसत कर दे। मातम हुसैन।